پرائم ٹائم نیوز بلیٹن کو پیش کرنے میں تعاون کیا ہے جامعۃ المفلحات اینڈ فلاح گروپ آف اسکولز حیدرآباد۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں سیاست ٹی وی اور پرائم ٹائم نیوز بلیٹن میں آپ سبھی کا استقبال ہے۔ میں ہوں ناظمہ۔ سب سے پہلے نظر ہیڈ لائنز پر۔ حج 2025 کے لیے حج ہاؤس میں آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی سہولت پیر 19 اگست سے ہوگی شروعات۔ ریونت ریڈی کی اگلی سیاسی منزل بی جے پی، کے ٹی آر کا حیران کن انکشاف، کہا ریونت نے خود اپنے ساتھیوں کے سامنے اس منصوبے کا کیا اعلان۔ حیدرا کی جانب سے گنڈی پیٹ میں غیر مجاز تعمیرات کے خلاف انہدامی کارروائی، اجازت کے بغیر کاروباری کمپلیکس کیے گئے تھے تعمیر۔ گنجائش سے زائد مسافرین پر آر ٹی سی بس کے پہیے نکل گئے۔ ضلع جگتیال میں پیش آیا واقعہ، بس میں 170 افراد تھے سوار، کوئی جانی نقصان نہیں۔ حیدرآباد اور رنگاریڈی کے پبس اور بارز پر دھاوے، منشیات کی لعنت کے خاتمے کے لیے اقدامات۔ کشمیر دشمنوں کو مکمل طور پر مسترد کرنا وقت کی اہم ضرورت، ڈاکٹر فاروق عبداللہ کا ریمارک۔ کشمیر کی شناخت مٹانے کی کوششوں کا بی جے پی حکومت پر لگایا الزام۔ ہر 4 میں سے ایک ملک غریب ہو جائے گا، حالات کو سنبھالنے کے لیے $4 ٹریلین کی ہے ضرورت۔ وائس آف گلوبل ساؤتھ سمٹ سے نرملا سیتارمن کا خطاب۔ اور بنگلہ دیش میں دھرم پریورتن ہو رہا ہے، امت شاہ کا دعویٰ، اقلیتوں کے حالات پر ظاہر کی تشویش۔ ہیڈ لائنز آپ نے دیکھی، اب پیش ہے خبروں کی تفصیل۔ حج 2025 کے لیے عازمین حج کو پیر 19 اگست سے حج ہاؤس نامپلی میں آن لائن درخواستیں داخل کرنے کی سہولت شروع ہو جائے گی۔ سید غلام افضل بیابانی خسرو پاشا صدر نشین تلنگانہ اسٹیٹ حج کمیٹی پیر کو حج ہاؤس نامپلی میں آن لائن درخواستوں کا بٹن دبا کر افتتاح انجام دیں گے۔ عازمین حج کے لیے 2025 کے عازمین حج کا آن لائن درخواست سے 13 اگست سے آغاز ہو چکا ہوگا۔ عازمین حج اپنی درخواستیں آن لائن بھی کر سکتے ہیں، حج سویدھا فون اپلیکیشن کے ذریعے بھی کر سکتے ہیں۔ درخواست گزاروں کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنے ساتھ اہم دستاویزات ساتھ رکھیں۔ ایک حیران کن انکشاف میں بی آر ایس کے کارگزار صدر و سابق حیثیت وزیر کے ٹی آر نے کہا ریاست کے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی اپنی ٹیم کے ساتھ بہت جلد بی جے پی میں شامل ہونے والے ہیں۔ ریونت ریڈی کی اگلی سیاسی منزل بی جے پی رہے گی۔ کے ٹی آر نے میڈیا سے بات کرتے ہوئے ان خیالات کا اظہار کیا۔ بی آر ایس کے کارگزار صدر نے کہا چیف منسٹر نے حالیہ دنوں خود اپنے ساتھیوں کے سامنے چونکا دینے والے ان منصوبوں کا انکشاف کیا تھا۔ کے ٹی آر نے تلنگانہ میں قرض معافی کے نام پر کانگریس پارٹی کی جانب سے کی گئی دھوکہ دہی کے تعلق سے راہل گاندھی اور ملکارجن کھڑگے کو مکتوب تحریر کیا۔ انہوں نے کہا وہ یہ خط ان لاکھوں کسانوں کی جانب سے لکھ رہے ہیں جنہیں ریاست میں قرض معافی نہیں ملی۔ انہوں نے انتباہ دیا کہ اگر حکومت تمام کسانوں کا قرض معاف نہیں کرتی تو ان کی پارٹی تماشائی بن کر نہیں رہے گی، وہ کانگریس کے خلاف لڑے گی۔ اس خط میں کہا کہ وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کے جھوٹ اور میدانی سطح پر حقائق کے درمیان واضح فرق پایا جاتا ہے۔ حیدرا کی جانب سے گنڈی پیٹ میں آج غیر مجاز تعمیرات کے خلاف کریک ڈاؤن کرتے ہوئے خانہ پور میں غیر مجاز تعمیرات کو منہدم کر دیا گیا۔ ان عمارتوں کے مالکین نے اجازت کے بغیر یہ کاروباری کمپلیکس بنا لیے تھے۔ صبح سے ہی انہدامی کارروائی شروع کر دی گئی تھی۔ اس موقع پر عہدیداران اور عمارتوں کے مالکین کے درمیان زبردست بحث و تکرار بھی ہو گئی۔ پولیس کی بھاری تعداد کے ساتھ انہدامی کارروائی انجام دی گئی۔ پولیس راستے میں آنے والوں کو گرفتار بھی کر رہی تھی۔ ماحولیاتی ضوابط کی خلاف ورزی کرتے ہوئے بفر زون میں کئی عمارتیں کھڑی کر دی گئی اور اسی سلسلے میں شکایات ملنے کے بعد حیدرا کمشنر انگرات نے یہ کارروائی انجام دی۔ سیاست اور ملت فنڈ کی جانب سے مسلم لڑکے اور لڑکیوں کے لیے رشتوں کا خصوصی پروگرام یعنی کہ دو بدو
ہر اتوار کو منعقد ہوتا ہے. بعض اوقات اتوار کو یہ پروگرام منعقد بھی نہیں ہوتا، لیکن آج اتوار کو بنڈلا گڑا کے میراج گارڈن میں دوبدو پروگرام ایک بار پھر منعقد کیا گیا، اور یہ دوبدو پروگرام کی تقریباً 136ویں کڑی تھی، جہاں سرپرستوں اور والدین نے اپنے اپنے لڑکے اور لڑکیوں کے لیے ان کی قابلیت کے لحاظ سے رشتے ڈھونڈنے میں کامیابی حاصل کی، اور ادارے سیاست اور ملت فنڈ کے اس کارنامے کی بھی بھرپور ستائش کی. شروع کیا گیا ہے. جناب زاہد علی خان صاحب مدیر اعلیٰ روزنامہ سیاست نے مسلم معاشرے کا جائزہ لینے کے بعد مسلم معاشرے کے جو سنگین مسائل ہے اس کا ادراک حاصل کرنے کے بعد، اور ان کے رفقۂ کار نے ظہیر الدین علی خان صاحب مرحوم اور عامر علی خان صاحب نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست اور MLC لیجسلیٹو کونسل نے مسلم معاشرے کے مسائل کو دور کرنے کے لیے، خاص طور پر شادی بیاہ کا جو مسئلہ ہے، اس مسئلے کو آسان بنانے کے لیے بغیر لین دین کے جو کیا ہے رشتے طے کرنے کے لیے دوبدو پروگرام انہوں نے MDF انہوں نے قائم کیا ہے. حضرات، آپ جانتے ہیں کہ مسلم معاشرے میں آج شادی بیاہ کے مسائل بہت مشکل ہوتے جا رہے ہیں، اور مشکل اس لیے ہوتے جا رہے ہیں کہ ہم جو ہے سو اپنے خود ساختہ اصول ہم اپنے بنا لیے ہیں. حالانکہ ہمارے اصول متعین ہیں، مقرر ہیں، مدون ہیں. اسلام نے تمام اصول بتلا دیے ہیں. آج سے 1400 سال پہلے حضور کی تعلیمات ہیں، اور احادیث ہے، اور قرآن کے ذریعے سے بھی نکاح کے بارے میں بہت کچھ کہا گیا ہے. لیکن ہم اس کے تقدس کو برقرار نہیں رکھ رہے ہیں، اور اس کے بہت سی وجوہات ہیں. کیونکہ ہم ملے جلے معاشرے میں رہتے ہیں، مخلوط سوسائٹی کلچر میں ہم لوگ رہتے ہیں. لہٰذا دیگر جو ہندوستانی جو رسم و رواج ہیں، جو ہندوستانی جو قدریں ہیں تہذیبی، ان قدروں کو جو کیا ہے ہم نے اپنے معاشرے میں جو کیا ہے اس کو عادت بنا لیے ہیں، روایت بنا لیے ہیں. لیکن یہ جو کلچرل اور تہذیبی جو قدریں ہیں، یہ ہندوستانی اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں. شادی میں جتنی بھی رسومات مسلم طبقہ آج ادا کرتا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں. اور کیونکہ جتنی بھی رسومات ادا کرتے ہیں، اور حضرات ان رسومات سے کنارہ کش ہونا بہت ضروری ہے. ارے بھائی، ایک ایسا شعبہ مسلم معاشرے کا، مسلم طبقے کا، جس کو قرآن نے خود ذکر کیا ہے سورہ نساء کی آیت میں کہ نکاح کو آسان بنا دیا جائے، کہ زنا مشکل ہو جائے. میرے بھائی، تو آپ جو ہے سو کہ ایک دو باتیں بہت اہمیت کے حامل ہیں. لڑکی دیکھنے جاتے ہیں تو وہ لڑکی کا ذاتی گھر بھی دیکھتے ہیں، لڑکے کا ذاتی گھر بھی دیکھتے ہیں. ارے بھائی، یہ چیزیں کام آنے والی نہیں ہیں. لڑکی اور لڑکے کی سیرت اور باقیدار ہونا ہی یہ کام آنے والی ہے. میرے بھائی، آپ تعلیم دلاتے ہیں اچھے برے کی تمیز کے لیے بچوں میں، اور تعلیم کے ذریعے سے ہی ان مسائل کو ہم دور کر سکتے ہیں. تعلیم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ کہ بھئی جو مسئلے ہیں اس کو دور کرنا بہت ضروری ہے، اس میں اصلاح پیدا کرنا بہت ضروری ہے. تو لہٰذا جمعیت علماء بودھن نے اخبار سیاست کی 75ویں سالگرہ کی تکمیل کے موقع پر سیاست کے 100 صفحے کی زحامت والا خصوصی نمبر شائع کرنے پر مدیر جناب زاہد علی خان اور نیوز ایڈیٹر عامر علی خان کو پرخلوص مبارکبادی پیش کی. اس کے علاوہ ریاست میں مسلمانوں کے سماجی، معاشی اور سیاسی مسائل کو بے باکی سے اٹھانے پر سیاست کی خوب ستائش کی، اور MLC کی حیثیت سے جناب عامر علی خان کے حلف لینے پر پرجوش مبارکبادی پیش کرتے ہوئے کہا، مسلمانوں کے مسائل کے حل کے لیے جمعیت اور سیاست اپنا بھرپور کردار ادا کر رہا ہے. صدر جمعیت بودھن مولانا محمد عبدالحمید قاسمی اور اراکین حافظ شیخ نعیم، مولانا نعیم حافظ مبین، مولانا عظیم، مولانا قدوس اور دیگر نے بھی جناب عامر علی خان کو پرخلوص مبارکبادی پیش کی. ریاستی حکومت تلنگانہ نے اردو زبان کے قابل فخر فرزند، قوم کے مخلص رہبر محترم جناب عامر علی خان صاحب، نیوز ایڈیٹر روزنامہ سیاست حیدرآباد کو MLC کے لیے نامزد کیا گیا، اور الحمدللہ عامر علی خان صاحب کی
अलग बर्दारी भी अमल में आई है। यकीनन उम्मत को और रियासत तेलंगाना के अवाम को बहुत बड़ी खुशी है, क्योंकि रोज़नामा सियासत में और रियासती जमीयत उलमा ने हालिया रियासती इंतखाबात में अहम किरदार अदा किया है और आमिर अली खान साहब इंतहाई मुखलिस और मुतहर्रिक और कौम के बेहतरीन खादिम हैं। उनके ज़रिए से पूरी रियासत की आवाम को इंशाअल्लाह बहुत फ़ायदा होगा और ये कौम का, मुल्क का बहुत भला करेंगे। इसके साथ साथ में जमीयत उलमा बोधन रोज़नामा सियासत के इशाअत के 75 साल मुकम्मल होने पर दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करती है। रोज़नामा सियासत हिंदुस्तान का नामवर अखबार है, बहुत बड़ी तादाद में ये शाये होता है और न सिर्फ एक मुस्लिम बल्कि अभी भी कई गैर मुस्लिम क़ारीन इसके मौजूद हैं। बड़ी उम्र के लोग भी रोज़नामा सियासत का पाबंदी के साथ मुताला करते हैं। मौलाना उस्तानवी लाइब्रेरी अनिसा नगर बोधन में तकरीबन 20 साल से रोज़नामा सियासत पाबंदी के साथ एजाज़ी तौर पर आ रहा है और क़ारीन की बहुत बड़ी तादाद शौक़ व ज़ौक़ के साथ रोज़नामा सियासत का मौलाना उस्तानवी लाइब्रेरी में मुताला कर रही है। और अज़दहा पैकर फारसी में जिसका मतलब है नाकाबिले तबाही वाला देहकल सांप, ड्रैगन जो आग में सांस लेता है। सन 1687 में मुगलिया सल्तनत के शहंशाह आलमगीर औरंगजेब ने कुतुब शाही सल्तनत को ख़त्म करने के लिए गोलकुंडा किले पर हमला किया था। आलमगीरी फ़ौज ने अपने साथ 4 बड़ी तोपें लाई थीं, जिसमें फ़तेह रहबर तोप, अज़दहा पैकर तोप भी शामिल थीं। और हमारे नुमाइंदे फ़हीम अंसारी ने देखा कि अज़दहा पैकर तोप आज भी गोलकुंडा में बाउली दरवाजे के करीब मूसी ब्रिज पर मौजूद है। किले गोलकुंडा पर इन्हीं ताकतवर तोपों की मदद से हमला किया गया था, जिसके नतीजे में किले की मजबूत तरीन फसील का कुछ हिस्सा मुनहदिम हो गया था। मुगल फौजें किले की दीवार मुनहदिम करने के बाद जिस दरवाजे से किले में दाखिल हुई थी, उसे बाद में फतेह दरवाजे का भी नाम दिया गया। मुगल फौज ने किले पर अपने कंट्रोल के बाद इन तोपों को किले के बुलंद तरीन इलाके में नस्ब कर दिया था। अज़दहा पैकर तोप की लंबाई 452 मीटर बताई जाती है, जबकि इसके वजन 17 मीटर टन मौजूद है। इस ताकतवर तोप से 24 मीटर के फासले तक गोलाबारी की जा सकती थी और इस तोप ने किला गोलकुंडे की तस्कीर में अहम किरदार अदा किया था। इस तोप को कॉपर, ब्रॉन्ज, बिर्स, लोहा और दीगर अशिया से तैयार किया गया था। तोप के दहाने से आग उगलने के खौफनाक मंजर को देखते हुए शहंशाह औरंगजेब ने इसे अज़दहा पैकर का नाम दिया था। ये तोप आज भी असली हालत में मौजूद है, ताहम माहिरीन का मानना है कि अब इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। मैं अनुराधा रेड्डी, को कन्वीनर इंटैक तेलंगाना, कन्वीनर इंटैक हैदराबाद। अब हमारी खुशनसीबी है कि हम मूसा बुर्ज यहाँ पर, जिस पर अज़दहा पैकर एक मुगल कैनन जो मुगल अटैक के साथ आया था, आज जो है इसका मेंटेनेंस आर्मी आर्टिलरी सेंटर उनका करते हैं, मूसा बुर्ज का भी और खंदक का भी, और इनके जो कंट्रोल में है उसके जो एरिया देख लेते हैं तो मैं क्या बोलूं, कितना चैलेंज है। मूसा बुर्ज को हम लोग इंटैक हैदराबाद की तरफ से 2 बार अवार्ड दिए हैं। एक बार 2000 समथिंग में दिए और लास्ट ईयर हाल में 2023 में दिए हैं फॉर कंटिन्यूअस मेंटेनेंस। ऐसी मेंटेनेंस और ऐसी अपकीप हमारे हर जो हेरिटेज मॉन्यूमेंट्स है, हमारा गोलकोंडा फोर्ट और जो तेलंगाना में है रिच हिस्ट्री ऑफ फोर्ट्स एंड हेरिटेज, उसको मेंटेन करना चाहिए। अपने पास स्टेट आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट में 350 मॉन्यूमेंट्स हैं, उसको भी देखना चाहिए। और ASI के अंडर 8 मॉन्यूमेंट है तेलंगाना में, और आर्मी में जो सिकंदराबाद कंटोनमेंट में है और यहाँ पे है गोलकोंडा में, बहुत खूबसूरत तरीके से रखे हुए हैं। मेरा गुजारिश है कि सब मॉन्यूमेंट, सब म्यूजियम, सब ऐसी तरीके से रखना है। यहाँ आर्टिलरी सेंटर में कलेक्शन ऑफ कैनन और वेपन भी है, जो
मुगल पीरियड से लेके कुतुब शाही पीरियड से लेके आसफ जाही पीरियड से लेके यहाँ पे कलेक्शन बना के रखे हैं, एक म्यूजियम भी बनाए हैं. The artillery center, the units that it controls are looking after the history and heritage, the military history and heritage and architecture of Golconda and Hyderabad. Whenever we have the opportunity to visit, we always wonder how well they look after our heritage. Today we have been able to visit the Bodhali Darwaza, some call it the Badali Darwaza, which had collapsed in 2020, and Intac was invited to come in and give technical advice and guidance to the army to look after it. Today we were surprised and really amazed to see the kind of conservation work and restoration work of this gateway. If we look at other areas of Golconda Fort, in civilian areas, it is not easy to see a gate, a moat that is not encroached, a wall that is not built on, or structures that have completely disappeared. The army keeps it in wonderful shape, without litter, without garbage, and it is something noteworthy that they are looking after our heritage in the way they. अब वक्त हो चला है एक ब्रेक का। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी था 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाजिरा व हिफ्स और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्स। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका खैर मख्तम है। रियासत की कांग्रेस हुकूमत ने शहदाबाद में यंग इंडिया स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के क़याम का फैसला किया है। जनूबी कोरिया के हालिया दौरे में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कोरियन नेशनल स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का दौरा किया था और स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी के काम करने के तरीक़ेकार की जानकारी हासिल की। चीफ मिनिस्टर ने कहा, हैदराबाद में बैनुल अक़वामी मियार की यूनिवर्सिटी क़ायम की जाएगी जो नौजवानों के लिए सहूलत वाली रहेगी। कांग्रेस रहनुमा अभिषेक मनु सिंघवी को तेलंगाना से राज्यसभा का उम्मीदवार बनाया गया है। इसी सिलसिले में अभिषेक मनु सिंघवी हैदराबाद के दौरे पर हैं। सिंघवी ने हैदराबाद पहुंचने के बाद आज वजीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात की। सिंघवी कांग्रेसी अरकान असम्बली और दीगर कायदीन से भी मुलाकात करेंगे। इदारा तंजीम महदविया और बज़्म अली मंजूर अलैहिर्रहमा के ज़ेर एहतमाम मुमताज़ शायर सैयद रज़ा मंजूर के 2 मजमूए कलाम की रस्म इजराई अमल में लाई गई। इस तकरीब की सदारत मौलाना सैयद मोहम्मद सरफराज महदी तशरीफ़ इलाही ने की, जबकि सरपरस्त आला तंजीम महदविया हज़रत मकसूद अली ख़ान के अलावा माहिर उरूज़ व माहिर तारीख़ उस्ताद सुखन सैयद समीउल्लाह हुसैनी साहिब समी और हज़रत नेमतुल्लाह ख़ान सूफ़ी ने भी सैयद रज़ा मंजूर को खिराज तहसीन पेश किया। शहर में पेश आए सड़क हादसे में आज 4 अफराद जख्मी हो गए। यह हादसा इतवार की सुबह मासापटंग इलाके में उस वक्त पेश आया जब BMW कार चलाने वाले ने उसका तवाज़ुन खो दिया और फिर ये कार डिवाइडर से टकरा गई। इस कार में 4 अफराद 6 दिन में 2 मर्द और 2 ख़वातीन शामिल हैं। ये कार खैरताबाद से बंजाहिज की सिमत जा रही थी। हादसे के वक्त बग्घा नामी शख्स कार चला रहा था। जख्मियों के इलाज के लिए करीबी अस्पताल भी मुंतकिल कर दिया गया। गुंजाइश से जायद मुसाफरीन पर RTC बस के पहिए निकल गए। दरअसल ये वाक़या ज़िले जगतियाल में पेश आया। इस बस में 170 अफराद सवार हो गए थे। ये बस ज़िले जगतियाल से रवाना हुई थी कि मोरापल्ली के करीब अचानक बस के 2 पहिए निकल पड़े। ताहम खुशकिस्मती से बस का कोई भी मुसाफिर जख्मी नहीं हुआ, जिस पर तमाम ने राहत की सांस ली। इस हादसे के वक्त बताया जा रहा है कि बस में ज़्यादातर ख़वातीन और बच्चे शामिल थे। इस वाक़े का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। तमाम मुसाफिर को दूसरी बस के जरिए फिर उनकी मंजिल पर पहुंचाया गया। बादजा इस बस की मरम्मत करते हुए इसको डिपो भेज दिया गया। निजामाबाद के डिवीजन नंबर 10 भारतीय रानी कॉलोनी में रेवेन्यू ट्रांसको और मुकामी पुलिस की इंहदामी कार्रवाई में सैकड़ों लोग बेघर हो गए हैं। पेश नाज़रीन खास तफसीलात इस रिपोर्ट में। शहर निजामाबाद के डिवीजन नंबर 10 भारतीय रानी कॉलोनी में रेवेन्यू पुलिस ट्रांसको के ओहदेदारों की कार्रवाई की वजह से सैकड़ों अफराद बेघर हो गए हैं और इन तमाम का ताल्लुक गरीब तबके से बताया जाता है।
تفصیلات کے مطابق شہر کے ڈویژن نمبر 10, 11, 12 اور 13 کے علاقے میں بیشتر افراد غریب مزدور طبقے سے تعلق رکھتے ہیں اور یہاں مقیم افراد مختلف مقامات سے کئی سال قبل یہاں پر زندگی بسر کرنے بس چکے ہیں۔ سال 2005 میں اس وقت کے رکن اسمبلی آنجہانی ڈی سیواس نے غریب افراد کی مدد کرنے کے لیے تقریباً 500 افراد کو پٹا سرٹیفکیٹ دیتے ہوئے مکانات کی تعمیر کے لیے قرض بھی منظور کروایا تھا، جس پر چند افراد مکان بھی تعمیر کی تو چند افراد درمیان میں چھوڑ کر چلے گئے، کیونکہ بھارتی رانی کالونی ڈویژن نمبر 10 تالاب کے پیٹے میں اور اس کے اطراف کے علاقے میں ورنا گٹا پہاڑ ہے اور پہاڑ کا پانی بڈم چورو میں جمع ہو جاتا ہے۔ اس کے پڑوس میں دھرم پور ہلز پائے گئے جس کے ڈویژن نمبر 11, 12, 13 ہے۔ ڈویژن نمبر 10 بڈم چیرو کے علاقے میں واقع ہے۔ کئی سالوں سے یہاں پانی نہ ہونے کی وجہ سے علاقہ بنجر ہو گیا تھا اور اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے منتخب سیاسی نمائندوں نے اس اراضی کو ہڑپنے کی خاطر غیر مجاز طور پر فرضی پٹے تیار کر دیے اور اپنے اثر رسوخ کا استعمال کرتے ہوئے میونسپل عہدیداران کے ذریعے زمین کا اسسمنٹ کروا دیا اور پلاننگ بنا کر عارضی سڑکیں بھی قائم کر دی، برقی کھمبے بھی نصب کر دیے۔ اسسمنٹ کرتے ہوئے مکان نمبرات بھی حاصل کر لیے گئے۔ مکان نمبرات حاصل کرنے کے بعد اسے رجسٹریشن کرتے ہوئے غریبوں کو 2 لاکھ، 2.5 لاکھ، 3 لاکھ روپے کے داموں میں فروخت کرنا شروع کر دیا۔ غریب عوام کم دام پر پلاٹ ملنے کی وجہ سے دستاویزات کو دیکھتے ہوئے منتخب نمائندوں پر بھروسہ کر بیٹھے اور اسے خریدتے ہوئے پکے مکانات تعمیر کرنا شروع کر دیے اور تقریباً اس علاقے میں 40 سے زائد پکے مکانات تعمیر کیے گئے تو چند افراد عارضی طور پر ٹین شیڈ قائم کرتے ہوئے زندگی بسر کر رہے تھے۔ لیکن ہفتے کی صبح کی اولین ساعتوں 5 بجے پولیس ریونیو ٹاسکوں کے عہدیدار یہاں پہنچ کر مکانوں پر دستک دی اور برقی منقطع کرتے ہوئے انہدامی کارروائی شروع کر دی، جس سے کئی افراد خوفزدہ ہو گئے، پریشانی کے عالم میں مبتلا ہو گئے۔ لیکن کوئی بھی عہدیدار ان کی پریشانیوں کو سمجھنے کے لیے تیار نہ ہوا۔ اس طرح لاکھوں روپے کا نقصان کرتے ہوئے ان کے مکانات کو مسمار کر دیا گیا، جبکہ شہر کے پہلے شہری کے درمیانی افراد کو رکھتے ہوئے سارا معاملہ انجام دیا گیا اور متاثر افراد جب ان سے رابطہ پیدا کرنے کی کوشش کی تو ان کے فون بند تھے اور وہ لاپتہ ہو گئے۔ چند ماہ قبل ان کے خلاف غیر مجاز مورم کی نکاسی کرنے پر پولیس نے مقدمہ درج کرتے ہوئے گرفتار بھی کیا تھا۔ BRS سے تعلق رکھنے والے شخص اپنے دلالوں کو درمیان میں رکھتے ہوئے کروڑوں روپے ہڑپ لیے اور اس طرح غریب عوام کو اب بے گھر کر دیا گیا۔ کل کے واقعے کے خلاف چند خواتین نے 5th ٹاؤن پہنچ کر میئر کے شوہر شیکھر، کارپوریٹر کے شوہر نریش اور ان کے حامی محمد احمد کے خلاف شکایت درج کروائی اور فرضی پٹا تیار کرتے 2 لاکھ روپے فروخت کرنے کا الزام لیا گیا، لہٰذا ان کے خلاف کارروائی کا مطالبہ کیا۔ متاثرین کی جانب سے اب اس بات کی اپیل کی جا رہی ہے کہ انہیں پلاٹ فروخت کرنے والے افراد کے خلاف سخت کارروائی کی جائے۔ ACP نظام آباد وینکٹ ریڈی نے بتایا کہ 5th ٹاؤن پولیس نے کل بھی چند افراد کے خلاف مقدمہ درج کر لیا۔ آج بھی خواتین کی جانب سے کی گئی شکایات پر مقدمہ درج کیے جا رہے ہیں۔ اس بارے میں اعلیٰ سطحی تحقیقات کرتے ہوئے سرکاری اراضی کو غیر مجاز طور پر قبضہ کرتے ہوئے فروخت کرنے کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی۔ بیورو رپورٹ، سیاست ٹی وی۔ شہر کے قلب میں واقع مشہور تفریحی مقام یعنی کہ حسین ساگر کی سطح آب پر GHMC حکام قریبی نظر رکھے ہوئے ہیں، کیونکہ شہر میں گزشتہ 2 دنوں کی شدید بارش کی وجہ سے حسین ساگر میں پانی کے بہاؤ میں اضافہ ہو گیا ہے، جس کے سبب حسین ساگر کی سطح آب میں اضافہ درج ہو رہا ہے۔ حسین ساگر جھیل کی مکمل سطح آب 513.43 کے منجملہ آج صبح ساگر کی سطح آب میں 513.53 تک کا اضافہ درج ہو گیا تھا۔ واٹر مینجمنٹ کے حصے کے طور پر ایک دروازے کو 2 فٹ اوپر اٹھا دیا گیا اور 12ویں دروازے سے پانی کا اخراج کیا جا رہا ہے۔ منشیات کی لعنت کے خاتمے کی مہم کے حصے کے طور پر محکمہ نشے بندی و آبکاری نے حیدرآباد اور اس کے نواحی ضلع رنگاریڈی کے کئی پبس اور بارز پر دھاوے کیے۔ ہفتے کی شب ان دونوں اضلاع کے مشہور کئی پبس اور بارز پر دھاوے کیے گئے، جس کے لیے 25 ٹیمیں تشکیل دی گئی تھیں۔ دھاووں کے بعد ہر ٹیم نے مشتبہ افراد کا پینل ڈرگس ڈکٹیٹن کٹ کے ذریعے معائنہ کیا تاکہ اس بات کی تصدیق کی جا سکے آیا ان مشتبہ افراد نے ڈرگس کا استعمال تو نہیں کیا ہے۔ پولیس نے کہا تفتیش کے دوران معلوم ہوا ہے کہ ملزم گزشتہ 6 ماہ سے صارفین کو گانجا چاکلیٹ فروخت کر رہا تھا۔ پولیس نے شہر نواح علاقوں کے مختلف مقامات پر اسی طرح کے دعوے کرتے ہوئے گانجا چاکلیٹس کو ضبط کیا تھا۔
और नज़र चंद अहम कौमी खबरों पर। वज़ीर ख़जाना निर्मला सीतारमन ने कहा, हमें गरीबों की बेहतरी के लिए मिलकर काम करना होगा। हमारा मकसद तरक्की के इस सफ़र में पसमानदा लोगों को शामिल करना है। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से वर्चुअली खिताब करते हुए रमन ने कहा, पैसे की कमी तरक्की पजीर ममालिक की तरक्की में रुकावट बन जाती है। उन्होंने कहा, पायदार तरक्की के अहदाफ के उसूल के लिए $3 ट्रिलियन की अशद ज़रूरत है। वज़ीर ख़जाना ने कहा, आलमी बैंक की हालिया रिपोर्ट के मुताबिक जारिया साल के आखिर तक हर 4 तरक्की पजीर ममालिक में से 1 गरीब हो जाएगा। ये ममालिक कोविड वबाई मर्ज़ से पहले की सूरत हाल तक भी पहुँच सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला ने आज कहा, जम्मू कश्मीर की वहदत, इनफरादियत और शिनाख्त के साथ साथ तीनों खित्तों के अवाम की तहजीब, तमद्दुन और मजहबी आज़ादी को वाक़ई जिंदा रखना है तो फिर हमें मुत्तहिद होकर उन अनासिर के खिलाफ सफ़े आना चाहिए जो इस तारीख़ी रियासत का नाम निशान मिटाने के दर पे हैं। उन्होंने कहा, हमें इन दुश्मन अनासिर के अज़ाइम को नाकाम बनाना होगा, जबकि उनके मुकामी आलाकारों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना वक्त की अहम ज़रूरत है। उन्होंने कहा, नई दिल्ली ने गुज़िश्ता 5 सालों से जम्मू कश्मीर के अवाम को जो जुल्म, सितम और मुश्किलात के पहाड़ ढाए हैं वो एक दर्द भरी दास्तान है। ये लोग हमें हमारी तारीख़ी रियासत के वजूद, मजहबी आहंगी, भाईचारा और आबादियाती तनासुब को तहस नहस करने पर तुले हुए हैं। उन्होंने कहा, मौजूदा मरकजी हुकूमत एक ही निशान और एक ही रंग के मौक़िफ़ पर डटी हुई है, लेकिन हिंदुस्तान एक बाग है जिसमें हर किस्म के फूल यानी कि मुख्तलिफ तबके मजहबों के लोगों को अपनी ज़िंदगी गुजारने की आज़ादी हासिल है। अहमदाबाद में CAA सर्टिफिकेट की तकसीम के लिए मुनक़िदा तकरीब से खिताब करते हुए मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह ने इल्ज़ाम लगाया, बांग्लादेश में हिंदुओं का ज़बरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाया जा रहा है। उन्होंने कहा, बांग्लादेश में हिंदू अक़लियत का जीना हराम कर दिया गया है और इस बात पर हिंदुस्तान को शदीद तशवीश है। 19 में कानून पारित होते हुए भी आज 188 परिवार यहाँ खुशहाल खड़े हैं। क्यों नहीं मिला भाई 19 से 24 आपको? देश में दंगे कराए गए, अल्पसंख्यकों को भड़काया गया। और मैं आज स्पष्टता के साथ कहना चाहता हूं, ये अफवाहें फैलाई गई थी CAA की कानून से किसी की नागरिकता नहीं जाती। हिंदू, बौद्ध, सिख, जैन जो शरणार्थी मेरे भाई बहन आए हैं उनको नागरिकता और सम्मान देने का कार्यक्रम है, अधिकार। और आज भी कुछ राज्य सरकारें हैं जो लोगों को गुमराह कर रही। मैं आज मंच से देश भर के शरणार्थी भाइयों को कहता हूं कि आप बेझिझक एप्लीकेशन करिए, नागरिकता प्राप्त करिए, आराम से करिए। इससे पास्ट में अगर आपकी नौकरी है तो वो चालू रहेगी, आपका मकान है वो आपके नाम पर ही रहेगा, आपके सारे काम जो है वो रिट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट से सुधारने। इसमें कोई क्रिमिनल केस का प्रोविजन नहीं, सबको पार्डन दिया गया है। और पार्डन इसलिए लिया है कि सरकार के कारण ये देरी हुई, आपके कारण नहीं हुई। मैंने अभी बहन को पूछा कब आई आप, तो 95 में आई। 95 से अब तक किसने देरी की? वो तो तुरंत चाहती थी मैं भारत की नागरिक बनूं, मगर किसने नहीं बनने दिया? सरकार ने कहा। इसीलिए सिटीजनशिप अमेंडमेंट एक्ट लाना पड़ा। और आज मुझे बड़ा दिल में बहुत संतोष है कि मेरे ही राज्य में आज 188 परिवार मां भारती के परिवार बनकर, हमारे भाई बहन बनकर हमारे साथ सम्मान के साथ। जुमा के रोज़ राजस्थान के उदयपुर में 10वीं दर्जे के 2 तालिब इल्मों की लड़ाई ने तशद्दुद वाले हालात पैदा कर दिए। इलाके में दफ़ा 144 नाफिज करने तक की नौबत आ गई। कई मुकामात पर तोड़फोड़ आगजनी के वाक़यात पेश आए। इस मामले में आज मुलजिम तालिब इल्म के ऊपर इंतजामिया ने सख्त कार्रवाई भी की। नाबालिग तालिब इल्म के घर पर बिलडोज़र चला दिया गया और इसकी फैमिली फ़िलहाल बेघर हो गई है। याद रहे कि अक़लियती तबके के तालिब इल्म ने जुमा के स्कूल में अक्सरियती तबके के तालिब इल्म पर चाकू से हमला कर दिया था। संगीन हालत में इसे अस्पताल दाखिल कर गया। जब हिंदू तंजीमों को इस वाक़े की जानकारी मिली तो उन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया। स्कूल, अस्पताल दोनों जगह लोगों की बड़ी तादाद जमा हो गई। हिंदू तंजीमों ने मुलजिम तालिब इल्म के घर को बिलडोज़र से गिराने का पुरज़ोर अंदाज मुतालबा किया।
इस मुतालबा का असर आज देखने को मिला जब अक़लियती तबके से ताल्लुक़ रखने वाले तालिब इल्म के अहल खाना को घर से निकाला गया, उनके सामान को बाहर फेंक दिया गया और फिर घर को मुनहदिम कर दिया गया। इस कार्रवाई के बाद भी इलाके में हालात कशीदा है और शहर में चप्पे चप्पे पुलिस तैनात कर दी गई है। और कुछ लोगों के बीच में ये कन्फ्यूजन्स थे कि साहब हमें बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट नहीं मिल रहा है। उन्हें इस बारे में जो भी मेडिकल प्रशासन है उनसे जानकारी लेकर के उन्हें अवगत कराया गया है। बच्चा स्टेबल है और लगातार उसका इलाज चल रहा है और उन्हें जो भी कन्फ्यूज़न है इस संदर्भ में उनको अवगत कराया गया है कि सीनियर अधिकारियों के और मेडिकल प्रशासन के नंबर उनके मौजूद लोगों को और उनके परिजनों को उपलब्ध कराए गए हैं कि किसी भी प्रकार का कोई कन्फ्यूज़न हो, किसी भी तरह की उनको वस्तुस्थिति जाननी हो तो वो संबंधित व्यक्ति से संपर्क कर सकते हैं। इसी बात कन्फ्यूजन्स को लेकर के ये लोग कुछ लोग यहाँ पर उत्सुकता वर्ष मुखर्जी चौक में एकत्र हुए थे। समझाइश करके उनको अभी हॉस्पिटल भेजा गया है, भेज करके और उनकी मेडिकल प्रशासन से वार्ता करा दी जाएगी और वार्ता करा करके और उनको संतुष्ट किया जाएगा। बार बार सर एक ही अफवाह फैल रही है। देखिए ये मिसक्रिएंट्स हैं, सब तरह के लोग मिसक्रिएंट्स हैं। रेगुलर बेस पे प्रशासन की तरफ से, मेडिकल प्रशासन की तरफ से मेडिकल अपडेट्स जारी किए जा रहे हैं। सभी अधिकारी, सभी मेडिकल प्रशासन के लोग सब और क्षेत्र के जो भी जिम्मेदार लोग हैं, जनप्रतिनिधि हैं, लगातार बच्चे की स्थिति के बारे में अपडेट ले रहे हैं और जनता को भी अपडेट कर रहे हैं। तो ऐसा कन्फ्यूजन किसी को रखने की जरूरत नहीं है और फिर भी कहीं कन्फ्यूजन है तो हमने हमारे नंबर उपलब्ध कराए कि हमारे नंबर से वो वस्तुस्थिति जान सकते हैं। किसी भी, मैं पुनः वापस कह रहा हूँ कि कोई भी अफवाह के ऊपर कभी भी कतई ध्यान ना दें। अगर किसी भी तरह का कोई अपडेट होगा तो निश्चित रूप से जो मेडिकल प्रशासन है या जो जिम्मेदार प्रशासन के लोग हैं वही जानकारी देंगे, वही लोग अधिकृत हैं। सर हॉस्पिटल में गफलत कैसे हुई, किसने किया, वो आइडेंटिफाई कोई ना तो किसी ने ये बात बताई कि साहब उन्हें किसने इस बारे में कोई अपडेट दिया, ऐसी कोई ऑफिशियल या मतलब कोई नामजद कोई आदमी नहीं है किसने किस तरह की बात बताई, किसी ने भी कोई नाम। मेगा चिनार बुक फेस्टिवल ने कश्मीर में हजारों पढ़ने वालों को अपनी जानिब मुतवज्जे किया है। 17 अगस्त से 25 अगस्त तक 9 रोज़ा मेला शेर कश्मीर इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस सेंटर के अक़बी लॉन में मुनक़िद हो रहा है। नेशनल बुक ट्रस्ट ऑफ इंडिया ज़िले इंतज़ामिया के ताउन से इस मेले को मुनक़िद किया गया है। डल झील के किनारे किताबों की वसी रेंज क़ाराइन की मुंतज़िर है। इस किताब मेले का मकसद टेक्नोलॉजी के इस डिजिटल दौर में नौजवानों को दोबारा किताबों की जानिब राग़िब करना है। फेस्टिवल को नौजवान और असातिज़ा से लेकर ख़वातीन तक तमाम तबकों की तरफ से ज़बरदस्त पज़ीराई मिल रही है। याद रहे कि जम्मू कश्मीर सूफियों, औलिया कराम, मुतअद्दिद अफ़सानवी अदीबों, मुसन्निफ़ीन, नक़्क़ादों, माहिर तालीम और शायरों की वादी रही है। कल्चर को प्रमोट करने के लिए पिछले लगभग 67 सालों से काम कर रही है। हमारा प्रयास है कि श्रीनगर में डल लेक के किनारे इस भूमि पर जो ऋषि मुनियों की, लेखकों की, कवियों की भूमि रही है, हम अपनी युवा पीढ़ी को किताबों से रूबरू कराएं। किताबें एक ऐसा जरिया है जो आपकी सोच को, आपके ख्यालों को, आपकी ज़िंदगी की हसरतों को एक बड़ा विस्तार देती है। कहीं ना कहीं बच्चों को यहाँ केवल किताबें ही नहीं, कला, साहित्य और संस्कृति का भी एक संगम अगले 9 दिनों में देखने को मिलेगा। वो अपनी जो भारत की विविधताएं हैं, केवल कश्मीर की नहीं, भारत की विविधताओं को भी यहाँ देख पाएंगे। पूरा प्रयास हमारा यही है कि हमारी युवा पीढ़ी अपने देश को अलग अलग नज़रिए से देखे, अलग अलग नज़रिए से जाने और किताबों के माध्यम से खुद को सशक्तिकरण की ओर लेके जाएँ। लाइफ डेवलपमेंट होता है, आदमी का जहन खुलता है और ये दूसरी चीज़ें जो है ऑनलाइन, इन सब से वो चीज़ें बैठती नहीं है दिल में, जो है वो ऊपर से गुजर जाती हैं। किताबों की बहुत ज़्यादा अहमियत है, उससे इनकार नहीं किया जा सकता है। विद द एडवेंट ऑफ इंटरनेट हमारा जो क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स है वो बिल्कुल डिमिनिश होता जा रहा है। रीडिंग कल्चर, बुक्स पढ़ने का कल्चर बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, बहुत ज़्यादा कम हो चुका है। जो ये इवेंट है इसकी वजह से आज मैंने बहुत सारी बुक्स देखी हैं। इट इज़ सो इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्पेशली फॉर यंग स्टूडेंट्स, कि वो फ़ोन छोड़ के रियल दुनिया देखे, अपनी बुक्स देखे, बुक्स के साथ प्यार करे। नॉवेल्स हो गए, फिक्शन, नॉन फिक्शन, सेल्फ हेल्प, इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू डेवलप योर क्रिटिकल स्किल्स। रेजिडेंट विनेश फोगाट 18 अगस्त को हरियाणा में अपने आबाई गांव पहुंची। मीडिया से खिताब करते उन्होंने कहा ओलंपिक मेडल उनके लिए गहरा जख्म बन गया है। अपने खिताब के दौरान उन्होंने अपने मंसूबों का इंकिशाफ नहीं किया कि वो रेसलिंग छोड़ देगी या फिर लड़ना जारी रखेगी। पता नहीं, मतलब मुझे लगता है कि टाइम लगता है उसको पढ़ने में, लेकिन आज जो मैंने अपने देशवासियों का, जो अपने परिवार का, अपने गांव का जो प्यार देखा है, तो शायद वो भाव पढ़ने में मुझे हिम्मत मिलेगी और शायद जिस रेसलिंग को मैं छोड़ना चाहती हूँ, मुझे नहीं पता, भी मैं कुछ बोल नहीं सकती कि मैं छोड़ दिया है, मैं करूँगी जो भी है,
लेकिन बस मैं इधर से मुझे जो हिम्मत मिली है, मैं चाहती हूँ कि उसको मैं एक सही दिशा में, सही जगह पे मैं उसको। आगे के लिए क्या भूमिका देखती है अपनी विनेश आप? जिंदगी की लड़ाई बहुत लंबी है, हमारी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। एक छोटा सा हिस्सा मैं अभी पार करके आई हूँ, और वो भी मुझे लगता है अधूरा रह गया था, लेकिन एक बहुत लंबी लड़ाई आपको पता है कि हम 1 साल से लड़ रहे हैं, वो लड़ाई कंटिन्यू जारी रहेगी। आखिर में हेडलाइंस पर एक और नजर। हज 2025 के लिए हज हाउस में ऑनलाइन दरख्वास्तें दाखिल करने की सहूलत पीर 19 अगस्त से होगी शुरुआत। रेवंत रेड्डी की अगली सियासी मंजिल बीजेपी, केटीआर का हैरानकुन इंकशाफ, कहा रेवंत ने खुद अपने साथियों के सामने इस मंसूबे का किया ऐलान। हैदराबाद की जानिब से गंडीपेट में गैरमजाज तामीरात के खिलाफ इन्हेदामी कार्रवाई, इजाजत के बगैर कारोबारी कॉम्प्लेक्स किए गए थे तामीर। गुंजाइश से ज्यादा मुसाफरीन पर आरटीसी बस के पहिए निकल गए। जिले जगतियाल में पेश आया वाकया, बस में 170 अफराद थे सवार, कोई जानी नुकसान नहीं। हैदराबाद और रंगारेड्डी के पब्स और बार्स पर धावे, मुनशियात की लानत के खात्मे के लिए इक़दामात। कश्मीर दुश्मनों को मुकम्मल तौर पर मुस्तरद करना वक्त की अहम जरूरत, डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का रिमार्क। कश्मीर की शिनाख्त मिटाने की कोशिशों का बीजेपी हुकूमत पर लगाया इल्जाम। हर 4 में से 1 मुल्क गरीब हो जाएगा, हालात को संभालने के लिए $4 ट्रिलियन की है जरूरत। वॉइस ऑफ ग्लोबल साउथ समिट से निर्मला सीतारमण का खिताब। और बांग्लादेश में धर्म परिवर्तन हो रहा है, अमित शाह का दावा, अक़लियतों के हालात पर ज़ाहिर की तशवीश। और इसी के साथ प्राइम टाइम बुलेटिन का सिलसिला यहीं अख्ताम को पहुंचता है। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाज़त, देखते रहिए सियासत टीवी। अल्लाह हाफिज। प्राइम टाइम न्यूज़ बुलेटिन को पेश करने में ताउन किया है जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स हैदराबाद। जामियातुल मुफलिहात एंड फलाह ग्रुप ऑफ स्कूल्स नए तालीमी साल के लिए दाखिले जारी है। नर्सरी ta 10th इंग्लिश और उर्दू मीडियम, इस्लामी स्टडीज, नाज़िरा व हिफ्ज़ और आलिमियत कोर्स के साथ इसके अलावा 10वीं जमात कामयाब लड़के व लड़कियों के लिए 3 साला आलिम कोर्स, फजीलत और तदरीस शोबे हिफ्ज़। हमारे ब्रांचेस कोत्तापेट, बालापुर, शरीफ नगर, RCI रोड और किशनबाग। लड़के और लड़कियों के लिए हॉस्टल और ट्रांसपोर्ट की सहूलत के अलावा सेपरेट बिल्डिंग्स। अपने बच्चों की दीन और दुनिया की मियारी तालीम के लिए जल्दी कीजिए, दाखिले महदूद हैं।